भाई इतना अमीर होना है कि प्राइस टैग चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं भी ऐसे ही सोचता था। पर ये कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है, ये बस एक फैंटेसी है। फिर एक संडे मैंने एक एक्सरसाइज की जो मेरे लिए लिटरली लाइफ चेंजिंग थी। टुडे आई विल शेयर विथ यू द एग्जैक्ट 7 स्टेप फाइनेंशियल क्लैरिटी एक्सरसाइज, जिसके बाद आपके पास भी एक नंबर होगा, आपका नंबर, दैट विल मेक यू फाइनेंशियली फ्री। स्टेप 1, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आई वांट टू बी रिच इज लिटरली द वर्स्ट फाइनेंशियल गोल यू कैन हैव। सी, जब आप बोलते हो मुझे बहुत पैसा चाहिए, इट्स लाइक सेइंग मुझे खाना चाहिए, बट कितना? चाइनीज, इटालियन, ब्रेकफास्ट, डिनर, क्या? मैं भी सेम चीज़ बोलता था फ्रेंड्स और फैमिली से। फिर एक दिन एक दोस्त ने पूछा, भाई एग्जैक्टली कितने पैसों पे तू फाइनेंशियली फ्री फील करेगा? एंड आई वेंट कंप्लीटली ब्लैंक। आई हैड नो आइडिया। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड आवर एंटायर जनरेशन हैज दिस प्रॉब्लम। किसी की दुबई ट्रिप देख ली इंस्टाग्राम पे, किसी की स्टार्टअप एग्जिट देख ली, एंड वी थिंक बस भाई यही चाहिए। बट क्यों चाहिए, कितना चाहिए और कब तक चाहिए? वी डोंट हैव एनी क्लैरिटी। बस यही समझने की जरूरत है दैट रिच इज नॉट अ डेस्टिनेशन, नॉट इवन अ जर्नी, it's nothing more than a word. इसीलिए I have developed and I am sharing this 7 step process with you, and trust me, step 2 will literally change how you think about money. But wait, अगर आपको ऐसा ही फाइनेंशियल बिजनेस या लाइफ डिजाइन कंटेंट देखना पसंद है, हम लोग एवरी वीक एक वीडियो पोस्ट करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अ लॉट। स्टेप 2, लेट्स कैलकुलेट योर पर्सनल इनफ नंबर। जापान में दे कॉल इट फाइंडिंग योर फाइनेंशियल इकिगाई। This exercise changed my life and I want you to actually do this. Seriously, grab your calculators. First, you will have to calculate your comfortable life cost. Not luxury, just comfortable. आपके सारे मंथली एक्सपेंसेस ऐड करो। रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरीज, पेरेंट्स की मंथली हेल्प, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, योर सेविंग्स, एवरीथिंग। नाउ हियर्स द कैच। जो भी नंबर आया है, मल्टीप्लाई इट बाय 300. Why 300? Because that's 25 years of expenses. Now, for example, अगर आपका comfortable life cost 1.5 lakhs आया है, if you multiply it by 300, that comes down to 4.5 crores. Now, I want to be rich suddenly became I need 4.5 crores to never worry about money again. But wait, inflation का क्या? Good question. That's why we'll create multiple income streams in step 5, but let me show you something really mind blowing now. If you have 4 crores invested at just 8%, it will give you 2.6 lakhs every month without even touching the principal. Now see, आपका comfortable life cost और आपके friend का अलग हो सकता है. No judgment here, but the point is you need to have a number. But by 4 crores at 24 years of age, are you crazy? It's impossible. मुझे भी ऐसा ही लगता था. Then my CA friend showed me something that completely blew my mind. Step 3, understand compound interest like your life depends on it. Because financially, it does. Reality check. 4 crores sounds impossible. But here's the math that changed everything for me. See, you're 25 years old, you want to retire at 45. Monthly SIP 45,000 at 12%, total investment around 1 crore 8 lakhs. What you get back is 4 crore rupees. But every year that you delay, आपका monthly burden बढ़ता जाएगा. That's why 20s is financially the most important decade of your life. But by 45,000 की SIP, मेरी तो salary 50,000 है. Fair point. That's why step 4 is about mapping your realistic income journey. Step 4, create your 15-year income roadmap with actual industry benchmarks, not wishful thinking. बहुत सिंपल है. Open an Excel sheet और पहले ये फिगर आउट करो कि आपके इंडस्ट्री में जॉब रोल्स कैसे इवॉल्व होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेक इंडस्ट्री में हो, यू माइट बी अ जूनियर डेवलपर टुडे. In 5 years, you might become a senior developer. In another 3, you might become a tech lead. In another 5, an engineering manager. And in another 3, director or a VP. Once you have this, use sources like Glassdoor and figure out कि इन जॉब रोल्स को आज के बेंचमार्क के हिसाब से कितनी सैलरीज मिल रही है. उसको भी नोट डाउन करो. Now you clearly have a 15-year vision of what your income will look like. Now this is for the people working jobs. अगर आप बिजनेस में हो, आपको पता है आपका बिजनेस कितनी रेट पे ग्रो कर रहा है. आपके फ्यूचर प्लान्स भी आपको पता है, उसके हिसाब से आप आपके 15-year ग्रोथ पोटेंशियल को मैप आउट कर सकते हो. इससे आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि हाउ मच कंपेंसेशन कैन यू टेक आउट ऑफ योर कंपनी इन द नेक्स्ट 15 years. नाउ दीज आर जस्ट सैलरी नंबर्स. आप आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स को भी कंसिडर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, कंसल्टिंग गिग्स ले रहे हो, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, ऑल दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड इनटू दिस. बट द पॉइंट इज टू बी एम्बिशियस बट रियलिस्टिक. बट हियर्स द ब्रूटल ट्रूथ. Salary alone won't make it. Even if you are at 50 LPA post tax, you are left with 35, which is less than 3 lakhs a month. That's why step 5 is crucial. It's about building what I call an income architecture. Multiple streams compounding together. And this one specific strategy will 10x your wealth building speed. Step 5. Build your 5-layer investment architecture.
This framework alone is worth lakhs in financial advisor fees. See, rule simple है. Your money needs to work harder than you do. Here's the architecture I would follow. Layer 1, the foundation. ये एक इमरजेंसी फंड है. अराउंड 6 to 12 months ऑफ एक्सपेंसेस. ये जाएंगे एक लिक्विड फंड में या फिर सिंपली एफडी में. ये क्यों जरूरी है? बिकॉज लाइफ हैपेंस. जॉब लॉस हो गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हो सकता है. यू नीड दिस मनी टू बी लिक्विड, इजीली एक्सेसिबल. कुछ भी छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करो बिकॉज समथिंग इज बेटर देन जीरो. लेयर 2, द ग्रोथ इंजन. ये आपका वेल्थ बिल्डिंग लेयर रहेगा. आपके पूरे इन्वेस्टमेंट में से 50 to 60% इन्वेस्टमेंट्स यहीं पे होंगे. ये सारे इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स होंगे, इंडेक्स फंड्स हो गए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स हो गए. आपको इजीली 12 to 15% रिटर्न एनुअली यहाँ से मिल सकता है. लेयर 3, द स्किल मल्टीप्लायर. ये आपकी इनकम का 10% अराउंड होगा एंड दिस विल गो इनटू कोर्सेज, कोचिंग, कॉन्फ्रेंसेज एक्सेट्रा, जहाँ से आप नई स्किल्स अक्वायर करोगे. ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है. आपका सबसे बेस्ट आरओआई इसी लेयर में से निकलने वाला है, क्योंकि जो नई स्किल्स आप अक्वायर करोगे वो आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे. लेयर 4, द कैश फ्लो क्रिएटर. ये आपके इन्वेस्टमेंट कॉर्पस के अराउंड 20% होना चाहिए. ये आपको कैश पैसिव इनकम देंगे. ये आप कहाँ पे कर सकते हो? ऐसी कंपनीज में जिसकी डिविडेंड हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो. आरईआईटीज के थ्रू आप छोटे अमाउंट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो. पर इस लेयर के लिए आपके पास एक टारगेट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मुझे 50,000 रुपीज इन कैश पैसिव इनकम चाहिए व्हेन आई एम टर्न 35. लेयर 5, द मून शॉट्स. ये सारे क्रेजी वाले इन्वेस्टमेंट्स होंगे. ये आपको एसिमेट्रिक रिटर्न देंगे, लाइक लिटरली 100 times. बट हियर्स द रूल. आपके इन्वेस्टमेंट कॉर्पस के सिर्फ 5 to 10% होने चाहिए और ये वही पैसे होने चाहिए जो अगर आप लूज भी करते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये कहाँ पे जाएंगे? दिस कुड गो इनटू क्रिप्टोज, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स या फिर एनी न्यू असेट क्लास. फॉर एग्जांपल, अगर आपने बिटकॉइन या इथेरियम में इन्वेस्ट किया हो या फिर आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई कॉलीग स्टार्टअप चालू कर रहा है जिसमें आप कुछ एंजल फंड डाल रहे हो. हियर्स द क्रिटिकल इनसाइट. ये सारे लेयर्स साइड बाय साइड चलते हैं. If you acquire a new skill, your income will increase. Your income will fuel your investments. Your investments will create your passive income, and the moonshots will accelerate everything. But most people get the order wrong. They start with the moonshot instead of the emergency fund. That's a recipe for disaster. And I know अभी सारी चीज़ें बहुत complicated लग रही है, multiple layers with multiple investments. But wait for step 6, जहाँ पे I'll give you a system that will automate everything. Step 6, the automation system. इससे ज़्यादा simple system आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा. All the investments that you want to make and all your monthly recurring expenses need to be on auto transfer, not at the end of the month, on the day that you receive your salary. पहली तारीख को सैलरी आ रही है, पहली तारीख की सुबह ही ये सारे पेमेंट शेड्यूल होने चाहिए. All the money left in your bank is guilt-free money. You can spend it on anything you want. Here's another rule. अगर आप ये सारे इन्वेस्टमेंट्स आपके रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो तो फिर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना. इन्वेस्ट करो और भूल जाओ. सिर्फ आपके मून शॉट्स को चेक करो वीकली या फिर मंथली, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इंस्ट्रूमेंट यू हैव इन्वेस्टेड इन, बिकॉज समटाइम्स यू वांट टू टेक एन एग्जिट आउट ऑफ दैट. नाउ, even after all this planning, investing, and automating, you might feel miserable if you get step 7 wrong, because it is about something much deeper than money. Step 7, understand what true financial freedom means. Let me tell you something. When you'll hit your first crore, it won't feel the same way that you're imagining it right now. So it is important to realize that money is just a tool, and the goal is not to have the most tools, but to build the life that you want. True financial freedom means saying no to a project because you hate it. आपकी फैमिली का ध्यान रखना without worrying anything. Sleeping peacefully without worrying about survival. So your enough number should not be about the luxuries या फिर वो दुबई ट्रिप या फिर किसी का स्टार्टअप एग्जिट जो आपने इंस्टाग्राम पे देखा. It should be about you not having to compromise your values for money. Not having to miss the most important moments of your life because आपको पैसे कमाने. That's real wealth. So coming back to where we started, I want to be rich is the worst financial goal ever. आपका गोल फ्रीडम होनी चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए और पीस होनी चाहिए. Yes, that requires money, but it requires a specific amount of money. Invest it strategically for clear purposes. So here's my challenge. इस Sunday, take 90 minutes, do this exercise और कमेंट में मुझे बताओ आपका इनफ नंबर क्या है. And more importantly, what will you do with that freedom?